sir. These are perfumes for my darling. آقا آپ نے باہر بہت وقت لگایا. 3 مہینے کے بجائے 6 مہینے تشریف لائے ہیں آپ. اور سنا امبر, how was life in Secota in my absence? Everything was perfect, sir. Good. سوائے اس کے کہ صاحبزادی صاحبہ آپ کا انتظار کرتی رہی. مجھے مس کیا انہوں نے بہت زیادہ. آپ سے زیادہ چاہنے کے لیے ان کے پاس اور ہے بھی کیا. لیکن وہ بیمار ہو گئی. بیمار ہو گئی؟ یس سر. بہت زیادہ بیمار ہو گئی. میں نے ڈاکٹر ہینا کو بلوا لیا ہے. Where is she? In her bedroom? یس سر. Dr. Hannah! Dr. Hannah! Dr. Hannah! ڈاکٹر, میری سر کی زندگی کو بچانا. انسان کے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دو. یہودی کے گھر میں مسلمان کی اولاد جنت میں شیطان کے وجود سے کم نہیں ہے. میری قوم مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی. ڈاکٹر, کبھی معاف نہیں کرے گی. Kill them! Kill them! پریشان نہ ہو, تینوں میں سے کوئی نہیں بچے گا, نہ تمہاری بیٹی اور نہ اس کے جوان بچے. تمہاری جنت سے ہر نیک روح بلندیوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے, جس طرح تمہاری نیک سیرت بیوی نے کیا. صحت قریب المرگ ہے اور اس کے جوان بچے پری میچور. ہیلو, میں ہنا بول رہی ہوں. ڈاکٹر میں بہت پریشان ہوں. تمہاری بیوی کی اس وقت بہت سیریس کنڈیشن ہے, وہ بے ہوش ہے. ڈاکٹر میں وہاں آ سکتا ہوں. میں اس کے باپ سے بات کر سکتا ہوں. مجھے کوئی خوف نہیں ہے. مسٹر محسن, بالکل نہیں. آپ کے لیے سہر کا صاف حکم ہے کہ نہ آپ اس کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں, نہ یہاں آ سکتے ہیں, اور آپ اس وقت جس جگہ ہیں اس جگہ سے فوراً کسی دوسری جگہ چلے جائیں. تو یہ تم ہو جسے میری سحر کے شوہر ہونے کا دعویٰ ہے؟ جی. علی سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ He is my cousin. Cousin? First cousin? First cousin. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ تم نے اسے میرا cousin نہیں بنایا؟ میں خداوند تو نہیں ہوں جو انسان اور اس کے رشتوں کو بناتا ہے. کہا تو تم نے اسی طرح سے ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے علی میرا کزن. ضدی اور کج بحث نظر آتے ہو. بیرسٹر ہونا. میں حیران ہو رہا ہوں کہ سحر علی ایسے دیانتدار آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی, اس نے تمہیں کیسے قبول کر لیا؟ یہ سوال تمہیں اپنی بیٹی سے کرنا چاہیے. میں اس سے سوال کیوں کروں؟ جواب تو مجھے خود ہی معلوم ہے. اس نے تمہیں علی کی محبت کے صدقے میں قبول کیا ہے. Shut up! علی کتنا خوبصورت, دیانتدار اور مخلص, اور تم ایوریج, بلکہ ایوریج سے بھی کچھ کم. بائی دا وے, لندن میں ایک لڑکی مجھے ملنے کے لیے آئی تھی, خاص طور پر ملنے کے لیے آئی تھی, اینا. بہت پریشان تھی ہے نا. میں نے اسے سمجھا دیا کہ ڈیوڈ اینڈ سارا کا چیریٹی فنڈ اس جیسی بے بس لڑکیوں کے لیے کھولا گیا ہے. میں نے آنا سے محبت کی ہے, کوئی گناہ نہیں کیا. مجھ سے پہلے تمہاری بیٹی بھی. پروفیسر محمد اور علی سے محبت کرتی تھی. میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں مسٹر.
اینا تمہارے فریب اور اپنی ضرورت کا شکار ہوئی ہے. پروفیسر محمد اور علی وہ لوگ ہیں جو کسی سے بے ایمانی کر کے غلط نکاح پڑھوا کے کسی کی دولت کے حصےدار نہیں بن جاتے. Ali is your worst enemy. میں اس جیسے دشمنوں کو تم پر ترجیح دیتا ہوں جو دشمنی میں بھی سچائی اور انصاف کا ساتھ دیتے ہیں. دس از شیئر ہیومن ٹریجڈی کہ مسلمان یہودیوں سے اور یہودی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. یو کین ناٹ ڈیگریڈ علی. علی جیسے آدمیوں سے دشمنی کرنا ہم جیسے سفلوں اور کمینوں کے بس کی بات نہیں ہے. آئی وش کہ علی نے مجھے دھوکہ دیا ہوتا, میری سحر سے شادی کر لی ہوتی. مجھے یقین ہے کہ سحر آج بھی علی سے بے انتہا محبت کرتی ہے. اور تمہاری حیثیت علی اور سحر کے محبت کے سفر میں ایک پاخ کی سی ہے. پاخ. یہ رہا میرا میرج سرٹیفکیٹ. میری بیوی میرے حوالے کرتا ہوں. چوری چھپے کی بھی سول میرج کا سرٹیفکیٹ مجھے کیا دکھاتے ہو؟ تم نے ہمارا پروٹوکول نہیں پڑھا ہے. ہم یہودیوں نے دنیا بھر کے انسانوں کو کرپشن کا شکار بنانے کا تہیہ کیا ہوا ہے. میں کسی کاغذ کی زبان نہیں سمجھتا, اخلاق کی زبان نہیں سمجھتا. میں صرف پیسے کو سلام کرتا ہوں. کاغذ, اخلاق, ہر چیز کو خرید سکتا ہے. بولو, بحیثیت بیرسٹر تمہاری کیا قیمت ہے؟ Collect your price and get out of my daughter's life. You bloody Jew. تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں تمہاری بیٹی کا شوہر ہوں. زندہ رہنا چاہتے ہو؟ تمہیں اور علی کو مار کے مرنا چاہتا ہوں. امبا, انہیں بہت احترام کے ساتھ باہر چھوڑا. دہشت پسندوں اور دولت مندوں نے آپس میں سمجھوتا کر رکھا ہے. یہ میری طاقت کا چھوٹا سا, بہت چھوٹا سا مظاہرہ ہے. رہنے دو بساریا, یہ اب اپنے آپ چلے جائے. اسے تم نے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے ایک وکیل سے مشورہ کرنا ہے. تم جاؤ 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 جاؤ. ہنا اگر میں مرتی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہنا, امبا, امبا. میں نے تمہیں کب خریدا تھا؟ 1911 میں. کہاں؟ ورجینیا میں. کتنے ڈالرز کے عوض؟ 10 امریکن ڈالر سر. And I would like to see you in your dirty slave's dress. Yes sir. علی چلا گیا. علی اگر یہاں ہوتا تو اس سچویشن کو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ہینڈل کرتا. تو میری یس سر. اس گھر کی کوئی چیز گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو اس کی باز پرس کس سے ہوگی؟ مجھ سے. کیوں؟ سحر جوہانسبرگ گئی, تو نے مجھے نہیں بتایا. کیوں؟ اگر تو نے مجھے بر وقت بتا دیا ہوتا تو آج میں دہشت پسندوں کے ہاتھوں اتنا مجبور نہ ہو گیا ہوتا. یہ لے, اسے ختم کر دے اور کمبرلی دریا میں بہا دینا. سر ارنسٹ کی زمین میں کیا ہوا کرائم قانون کی زد سے بالا ہوتا ہے.
use my helicopter. Go on, use my helicopter. As you wish, sir. मिस्टर डेविड, आज 4 दिन हो गए हैं तुमने इन मासूम बच्चों की किस्मत का फैसला नहीं किया। ना तो इनका ताल्लुक किसी दहशत पसंद तंजीम से है और ना ही इनका कोई वारिस है। तुम खुद क्यों नहीं मार देते इन्हें? मुझे इतना बता दो कि मेरी सहर बच जाएगी, प्लीज। ज़हनी तौर पर तो वो जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हाँ, अगर उसे ये बता दिया जाए कि उसके दोनों बच्चे मार दिए गए हैं तो वो यकीनन मर जाएगी, कयामत तक के लिए सो जाएगी। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला ये। ओह माय गॉड, फॉर गॉड सेक हैना, हेल्प मी प्लीज। मिस्टर डेविड, मैं आपकी किसी भी साजिश में शरीक नहीं हो सकूंगी। अमान, अमान, यस सर। कॉल बुसाया। ओके सर। वैसे सहर की ख्वाहिश है कि उसके दोनों बच्चे उसके शौहर के हवाले कर दिए जाएं। कहाँ ढूंढूं उस बदनसीब को, कहाँ तलाश करूं मैं अंबर को? उसने तो उसे खत्म कर दिया होगा। किम्बरली दरिया में तो उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। वो जिंदा है मिस्टर डेविड। ओह नो, अंबर मेरा हुक्म नहीं टाल सकता। उसने पिछले 40 वर्षों में मेरा हुक्म नहीं टाला। इट्स इम्पॉसिबल। उसने ऐसा किया है मिस्टर डेविड। मोहसिन जिंदा है। मोहसिन अगर अपनी बीवी के लिए नहीं आएगा तो अपने बच्चों के लिए जरूर आएगा। सॉरी मिस्टर डेविड। किताब मुकद्दस की कसम, मैं चाहता हूं कि वो दोनों बच्चे जिंदा रहें, लेकिन सोचता हूं कि अगर मुसलमानों से उनका राब्ता कायम रहा तो दहशत पसंदों से उन्हें कौन बचाएगा? उनकी वो भोली भाली सूरतें, वो दिल मोह लेने वाली उनकी आवाज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शहर के दिल से मुसलमानों की मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाए? मिस्टर डेविड, अंबर ने मोहसिन को कत्ल नहीं किया और हिना आपको दगा दे गई। मुझे यकीन था सर। अब क्या हो सकता है बुसारिया? द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी आखिरी सांसें ले रही है। नाइजीरिया के अंदर मुसलमानों का इत्तेहाद मजबूत होता चला जा रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि अंबर ने मोहसिन को कत्ल नहीं किया। मैंने जज्बात में आकर उसको कत्ल कर देने का हुक्म दे दिया था। नजात का प्लान फिर भी वही है जो मैंने आपको बताया। आपकी बेटी को जीते जी एक बार जरूर बनना होगा सर। लेकिन है ना? वक़्त है ना। मैं डॉक्टर सेन को जोहान्सबर्ग से बुलवाता हूँ और आप मोहसिन को बुलवाने का इंतजाम करें। इस पाकिस्तानी मुसलमान से नजात हासिल करना बहुत जरूरी है सर। मेरी शहर ने मुझसे बदला ले लिया है। डॉक्टर उसने अपने बाप से उसके गुनाहों की इतनी बड़ी सजा क्यों दी है? मिस्टर डेविड, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। उसने अपने बाप से ही नहीं, अपने तमाम चाहने वालों से इंतकाम लिया। काश मोहसिन तुमने शादी से 10 महीने पहले मुझे इत्तला कर दी होती। प्रोफेसर मोहम्मद की मौत के बाद तो मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो गया था कि शहर जरूर किसी न किसी मुसलमान से फिर शादी करेगी। मैं तो पहले से इस शादी को छुपाने के खिलाफ था, लेकिन शहर अब मर चुकी है। अब हम सबको सच बोलना चाहिए। आखिरी वक्त में सिर्फ मैं और हन्ना उसके पास मौजूद है। मत कहो डॉक्टर, मत कहो, मेरा गम से सीना फट जाएगा। डेविड, आपको सुनना पड़ेगा। आपको शहर की शादी की इत्तला भी उसी दिन मिल गई थी जिस दिन उसने मिस्टर मोहसिन से शादी की थी। आप ये भी जानते थे कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है और आपका एतमाद हासिल किए बगैर वो अपनी शादी की इत्तला आपको नहीं दे सकती। वो डरती थी। वो किसी ऐसे खूबसूरत लम्हे की तलाश में थी जब आप पिदराना मोहब्बत से मगलूब होकर उसे माफ कर दें, उसे सीने से लगा दें। Am I right?
لیکن آپ نے اس بیچاری لڑکی کو کبھی کوئی ایسا موقع نہیں دیا. مسٹر محسن نے اس سے شادی کر کے اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا. ظالم تو آپ ہیں، بلکہ میرے خیال سے اپنی بیٹی کی موت کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں ڈیوڈ. ہاں میں گناہگار ہوں. میں نے ہی اپنی بیٹی کی جان لی ہے. میں نے ہی اپنی بیٹی کی جان لی ہے. اسے دفنایا کہاں گیا؟ ابھی اسے دفنایا نہیں گیا. وہ ابھی اسی مکان میں موجود ہے اور اپنے مردہ بیٹے کو پہلو میں لیے ہوئے ایک خوبصورت لکڑی کے تابوت میں آرام کی نیند سو رہی ہے. کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ یقیناً مسٹر ڈیوڈ، آپ سے آپ کا یہ حق نہیں چھین سکتے. آئیے میرے ساتھ. لیکن ایک شرط ہے محسن، آپ اسے صرف بند لکڑی کے صندوق میں دیکھ سکتے ہیں. ویسے میرے اس فیصلے سے بھی اس کی روح کو اذیت پہنچے گی. دراصل سحر کی زندگی اور موت دونوں ایک بہت بڑا المیہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس المیہ کا سب سے مظلوم کردار کون ہے؟ ہاں، شاید سحر خود. نہیں، سحر نہیں مسٹر محسن، اس المیہ کا سب سے مظلوم کردار آپ ہیں. جی ہاں آپ. آئیے میرے ساتھ. صبر کیجیے مسٹر ڈیوڈ. ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. ہم سب ہر روز رات کو مر جاتے ہیں، ہر صبح پھر زندہ ہو جاتے ہیں، مگر سحر اب کبھی نہیں مرے گی. وہ اب تک زندہ. مت کہو. آپ کو آرام کی ضرورت ہے. آئیے میرے ساتھ. شاباش آئیے. میں ایک اجنبی کی حیثیت سے اس کی میت میں شریک ہو سکتا ہوں؟ نہیں مسٹر محسن، میت یروشلم جائے گی اور وہاں آپ کا جانا ویسے بھی ناممکن ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس المیہ کا سب سے مظلوم کردار آپ ہیں. یہاں تک اب تشریف لائے، یہ بھی اس کی وصیت کے خلاف ہے. میں پوچھ سکتا ہوں اس نے کیا وصیت کی ہے؟ آپ کو سن کر دکھ ہوگا. میرے ساتھ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ آپ پلیز مجھے بتا دیجیے. مرنے والی نے آپ کو کبھی نہیں چاہا. اس نے پروفیسر محمد اور سام مسٹر علی جیسے مسلمانوں کی محبت کا صدقہ سمجھ کے آپ کو قبول کیا تھا. اس کو آپ سے نفرت تھی. مرتے وقت صرف ایک شخص کا نام اس کے لبوں پر تھا. علی. یس، علی. میں اجازت چاہوں گا. بچی آپ کے ساتھ جائے گی؟ جی. مسٹر ڈیوڈ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. آئیے. مجھے اب یہاں سے چلے جانے دیجیے. میں آپ کا بے حد ممنون رہوں گا. مجھے معاف کر دو محسن. میری سحر کو تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی. میں ایک امپورٹنٹ یہودی، تم ایک مسلمان. اس رشتے کا انجام یہی ہونا تھا. مسٹر محسن، یہ کیا ہے؟ یہ $1,00,000 امریکن بینک میں، اور اسی بینک کے لاکر میں 10 لاکھ کے جواہرات، اور پیرس میں ایک ولا. نہیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. سحر کے گناہوں کی سزا اس کی بیٹی کو تو نہ دو. پلیز اس کی معصوم بچی کو اسی طرح عیش و عشرت میں پالنا جس طرح سحر پلی. آئی ریکویسٹ یو. نہیں، میں نے آپ سے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے. تمہیں نہیں چاہیے، لیکن یہ تو میری چھوٹی سحر کا حق ہے. تم نہیں بھی لوگے تو یہ اس کے بینک میں جمع رہے گا. پلیز. ایک چھوٹا سا ہوٹل کا بل ہے، وہ ادا کر دیجیے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.
होटल का बिल अदा हो चुका है। प्लीज, वेयर इज कैश? $4,000, 4,000 पाउंड तुम्हारे सफर खर्च के लिए, प्लीज। डेविड को माफ कर दो बेटे, मेरे गले लग जाओ। सर वो नाखुशगवार खबर भी सुना दीजिए। नाखुशगवार? नाखुशगवार क्यों कह रहे हो बादीस? ये तो दहशत पसंदों से निजात की खुशखबरी है। मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट करके तुम्हें और अली को फौरी तौर पर डिपोर्ट करने के अहकामात हासिल कर लिए हैं। राइट यू सर, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ब्लेसिंग है जो ये काम हो गया। नाइजीरिया के जनरल इलेक्शन के बाद तो ये नामुमकिन हो जाता। मिस्टर अली का आप बता देंगे? अली से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे ये शहर छोड़ते हुए बड़ी खुशी होगी। जहाज की बुकिंग हो गई सर। हेलेनिक प्राइड शिपर फर्स्ट क्लास केबिन। सर नर्स का भी टिकट ले लिया। अच्छा मिस्टर मोहसिन, नर्स बच्ची के साथ आपके होटल पर कमरे पर पहुंच गई है और ये नर्स पाकिस्तान बच्ची के साथ जाएगी, जिसके वापसी के इंतजाम आप कर देंगे। वैसे 24 घंटे के अंदर अंदर आप दोनों का अफ्रीका से बाहर चले जाना है। मैं इसे आपकी इनाम समझूंगा। गुड बाय माई सन, गुड बाय माई लव। लुक आफ्टर माई लिटिल सहार, डू। Yes. Yes. मिस्टर मोहसिन मुमताज कहाँ है? मोहसिन साहब तो शॉपिंग पे गए हैं सर। ये बच्ची मिस्टर मोहसिन की बेटी। तो इसकी माँ कैसी है? खैरियत तो है, आप जवाब क्यों नहीं देती? मैं पूछ रहा हूँ इसकी माँ कहाँ है, कैसी है? मुझे इसकी माँ के बारे में तो कुछ नहीं पता। वैसे मुझे इतना पता है कि मुझे इस बच्चे के साथ पाकिस्तान जाना है। सिस्टर, अगर आपको ये मालूम है कि ये मिस्टर मोहसिन मुमताज की बेटी है, तो आपको यकीनन ये भी मालूम होगा कि मिस्टर मोहसिन मुमताज इस बच्ची को किस घर, किस हॉस्पिटल से लेके आए। मिस्टर मोहसिन इसे डेविड कोहन के घर से लाए हैं। वहाँ इसकी माँ नहीं थी? मुझे इसकी माँ के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं बताया। वैसे मुझे बता सकते हैं आप कौन है? ये मेरे भाई की बेटी है। ऐसी मिस्टर मोहसिन आपके भाई हैं? जी। मेरा कोई भाई नहीं है। नर्स, इनके नापाक हाथों से बच्ची को ले लो। अब आप यहाँ आए गए हैं तो ताज़ियत कर लूं। नजमी साहब मर गई है और मरते वक्त उसके लबों पर आपका नाम था। मुझे आपसे हमदर्दी है। अब आप जा सकते हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई मोहसिन, वो जिंदा है, मर गई है। मोहसिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेविड और डॉक्टर सेन ने तुम्हें धोखा दिया है। बड़ा खतरनाक धोखा है। एक बाप अगर अपनी बेटी को मुर्दा कह सकता है, उसको ताबूत में बंद कर सकता है, तो मुझे ये मान लेने में कोई तामल नहीं है कि वो मर गई है। वैसे आपने शायद ख्वाब में तो नहीं देखा कि वो जिंदा है। I see. वो शायद आपसे मशवरा किए बगैर मर गई है, शायद इसलिए आपको यकीन नहीं आ रहा। प्लीज मोहसिन, देखो बहुत हो चुका है। अब तुम मेरे सब्र और मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाओ मत। प्लीज, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। शायद मेरे भले के लिए आप मेरी बीवी से इश्क करते रहे। बदनसीब इंसान, वो जिंदा है। हर आशिक अपनी महबूबा की मौत को कभी तस्लीम नहीं करता, बल्कि विसाले दुआम के लिए खुद मर जाता है। मुझे तो ये हैरत है कि आप अभी तक जिंदा कैसे? बेवकूफ, कमाकल आदमी। तुम्हारी जगह कोई ज़हीन आदमी होता ना, तो उसकी जिंदगी की चंद महीने जो तुमने सरजमीन पे गुजारे ना, पूरी जिंदगी के लिए एक मशले राह हो सकते थे। हाँ, मशले राह, चिराग हिदायत, ये सारी इस्तेलाहें मुझे सूट नहीं करती अली साहब, और ना मुझे समझ में आती है। आप मेरा सर ना खाएं और इस कमरे से बाहर चले जाएं ताकि मैं अपने जाने के इंतजाम कर सकूं।
वैसे बाय द वे 24 घंटे में आपको डिपोर्ट करने के अहकाम जारी हो चुके हैं। क्या क्या कहा? जी, जो कुछ कहा है यकीन नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर में होम मिनिस्ट्री का कोई आदमी आपको यकीन दिलाने आ जाएगा। मगर क्यों? मैंने क्या जुर्म किया है? मुझे तो नजम शहर से शादी के जुर्म में डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन आपकी तो अफ्रीका में फर्द जुर्म खासी लंबी है। तुम जुनून में पता नहीं क्या कुछ और कर सकते हो। नहीं, फर्दर जुर्म कोई नहीं लगाई गई है। होम मिनिस्ट्री के हुक्म में सिर्फ इतना कहा गया है कि पाकिस्तानी नेशनल्स की आपस में लड़ाई होने का खतरा है। झूठ, सरासर झूठ। इसलिए उन्हें अमन बरकरार रखने के लिए 4 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इनमें वो 2 आदमी भी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के मुजरिम हैं और उन्होंने यहां पनाह ले रखी। कातिलों के नाम के साथ मेरा नाम नक्की कर दिया है। खलीम हारून साहब, यकीनन डेविड की साजिश है। उसकी बेटी जिंदा है और वो नहीं चाहता कि मोहसिन के बाद भी मैं यहाँ रहूं। इस तरह से उसके राज के फाश हो जाने का अंदेशा है। हाँ, यकीनन, वरना तुम पर तो हाथ डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिजबुल मुस्लिमीन की हाई कमांड चाहे तो तुम्हें रोक भी सकती है। मगर अफसोस कि आज हफ्ता है और कल शाम तक तमाम दफातर बंद है और तुम्हारे डिपोर्ट होने में भी 8 घंटे रह गए। ये बात तो मुझे परेशान कर रही है। उस बदमाश यहूदी डेविड कोहन ने बहुत सोच समझ कर काम लिया है। हलीम हारून साहब, अगर परसों तक का मसला है तो ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा, जी, मैं समझ गया आपकी बात। जहाज का लंगर उठने से पहले इंशाअल्लाह तुम वापस लगोस पहुंच जाओ। तुम अल्लाह का नाम लेके शिप पे सवार हो और रहा डेविड कोहन, तो जो वो चाहता है वो नहीं हो सकेगा। गैर को भी अपने मालिक की नमक हरामी पर आमादा कर लिया। अब उससे उसके मालिक के घर की जासूसी करवाएंगे। बड़े जादूगर आदमी है। जमीन जैसी तुम्हारे पास कोई चीज है या नहीं? मैं चाहूं तो इस वक्त तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूं। तोड़ दीजिए, देख के लोगों को तमाशा आता है। तुमने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि तुम्हारी बीवी मुसलमान हो चुकी थी? और अगर वो जिंदा है तो कल तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? और अगर मर गई है तो तुम उसकी लाश यहूदियों के हवाले कराए। मोहसिन, नाइजीरिया के जनरल इलेक्शन सर पर है और बाखुदा अगर मुसलमानों के इस वाक़े की जरा सी भी भनक भी पड़ गई ना तो यहूदियों का अफ्रीका से जनाजा निकल जाएगा। बड़ा सियासी ज़हन है आपका। आप मेरी मुर्दा बीवी की लाश को सियासी गिद्धों के हवाले करना चाहते हैं। वैसे आप जैसे मौलवी नुमा आदमी को महबूबा के लिए परेशानी कुछ जेब नहीं देती, और फिर वो मेरी बीवी है, मैं जिस तरह चाहूं उसे दफन होने दूं। यहूदी ने तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तुमको तसव्वुर से ज्यादा दौलतमंद बना दिया है। सर, बेबी को बहुत तेज बुखार हो रहा है। जल्दी चले। अरे जरदाज कहाँ है? कहाँ खोएंगे? कोई फिल्म एक्टर दिख गया होगा। अरे तुम क्या देख ले रहे? बाइनोकुलर मेरे को दो, लाओ इधर। देख रहे हैं। पापा, वेयर इज मामा? अरे मेरे को क्या मालूम बीबी, मैं तो सीगल्स देख ले रहा हूँ चुप खड़ा होके। चलो, मैं डॉक्टर को देख के आता हूँ। सुनिए, डॉक्टर को देख रहे हैं आप?
जी हाँ आइए मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू, आपको जहमत तो होगी प्लीज। नहीं, जहमत की क्या बात है, जहाज पे हुआ शायद बेबी। जी नहीं, ये नाइजीरिया में पैदा हुई। अम्मा, तो आप इतनी कच्ची सत्या को लेके ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है। आई एम सॉरी, ये देखिए सामने। थैंक यू। मैं अपनी मेहमान गाइड का नाम पूछना भूल गया। प्रिंसेस जरताज हमीदुल्ला। थैंक यू अगेन प्रिंसेस, थैंक यू। क्या जाकर कहेगा? मोहसिन, तुम्हें डॉक्टर सेन और डेविड ने धोखा दिया है। नजमुल सहर जिंदा है। ये अपनी जान पर खेलकर कूदा है, यकीनन वो जिंदा है। कितना मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड डॉक्टर। आशिक, सैयद अली जागे तो नहीं थे? भैया, उनके दिल पर बलाओं का बोझ है, वो सोते में रो रहे थे। आज गोल्ड माइंस एसोसिएशन का जलसा है, मैं देर से लौटूंगा, तू जरा ख्याल रखना। अच्छा आशिक, याम है घर में? तुम्हारे दोस्त आकर खाना खाते हैं तो कुछ नहीं रहता घर में। थोड़े दिन की बात है आशिक, इंग्रेज चले जाएगा तो ये माइंस हमारी हो जाएगी। इलेक्शन फैसला कुन होगा। सैयद अली नीम की गोली के सहर से आजाद हूं तो खाने को क्या देगी? चावल, या उन्हें हम नाइजेरियन की तरह पसंद नहीं होगी। वो बाहर निकले तो उन्हें रोक लेना। फिलहाल उनका घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। बरतानवी पुलिस को खबर है कि बदेसी मुसलमान बहुत कुछ पसे पर्दा कर रहा है। अच्छा, मैं चलता हूं, तू ख्याल रखना। शुक्रिया। अहमद कहाँ है? भाई एसोसिएशन के जलसे में गए हैं। इसका मतलब हुआ कि आज पीर की सुबह है? जी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दरिया पे नहाने जा रहा था। पहले आपका नहाने का इंतजाम घर के पिछले आंगन में है। तो उसका मतलब है कि मेरी नजरबंदी जो है वो अभी तक जारी है। जब तक अली महाराज साहब भाई को इजाजत ना दे दें। खैर, आप
मेरी पहरेदार है। Oh God, help me. मैं किस तरह इस बच्ची को खामोश करवाऊं? उसको भी अभी बीमार होना था। बीमारी होना था तो वो आई क्यों नहीं? बहुत दुख में है। मरने वाली ने आपको कभी नहीं चाहा। उसने प्रोफेसर मोहम्मद और साम मिस्टर अली जैसे मुसलमानों की मोहब्बत का सदका समझ के आपको कबूल किया था। उसको आपसे नफरत थी। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। तू चाहे रो रो के मर जाए, मैं तुमसे नहीं। नवाब साहब, पाना खत्म हो रही ना? अजी पाना खत्म हो रहे तो मैं क्या करूं? आपकी पानखोरी से मैं आजिज आ गया हूं। वो चीफ ऑफिसर लंदन से यहाँ तक 6 वक्त पॉइंट आउट करा मेरे को। कभी आप इधर थूकते हैं, कभी उधर थूकते हैं। अरे क्या है, छोड़ो चाले, ये लोग हंसते ना। काय को हंसेंगे? हंस ले तो होंगे अपने ऊपर। पूरा लंदन पाना खा रहा है 20 मसाले डाल को। पूरा पाकिस्तान जगह जगह पान की दुकानें सजेब रही हैं। ऐसी दुकानें देखे थे कभी आप हैदराबाद में? चुप किया हमारे नाम की बदनाम की। आइंदा नहीं बोलना, आप बोले तो अच्छा नहीं होगा। आई मेरे पानों के पीछे पड़ गए। पापा आप हार गए, मैं तो चला। हाँ मियां, इतनी बड़ी रियासत हारे तो अब तो हार नहीं छाड़ना है। सखाफत हारे तो हार नहीं छाड़ना है। कहाँ जा रही माजर ताजा? मम्मा आप बोले थे ना बच्ची को ला लो। बैरिस्टर साहब की बच्ची को लेने जा रही? माँ जाओ जाओ, रो रो के हलकान हो रही। कहाँ संभलती बच्ची मरजात से? अरे ये जरदार से गुजारे वहाँ? अरे बच्ची को लेने जा रही है, और कहाँ जा रही है? ओहो, बहुत मॉडर्न हो गई जी आप हैं? अरे एक अजनबी के कैबिन में रात को 11 बजे लड़की को भिजाने की क्या जरूरत है? लड़की है सरताज, एक बच्ची की माँ है नवाब साहब। जरताज के माथे पे नहीं लिखा कि वो शहरियार की माँ है। अखलाकिया से बेवहरा हो गए अब तो। मैं एक बेटे की माँ हूँ मोहसिन साहब। Oh, I see. What a stupid I am. मुझे जो भी देखता है ना, वो यही समझता है कि मेरी शादी नहीं हुई। आपके हस्बैंड क्या? मर गए। Oh, I'm sorry. मैं बेबी को साथ ले जा रही हूँ, आप इसका सामान पहुँचा दीजिए। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नस कल तक ठीक हो जाएगी। I'm really thankful. सहर, इतने दिनों के बाद तुम्हारी तबीयत संभली है, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं हना नहीं, मुझे किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं जिंदा बच गई और दुख उठाने के लिए न जाने कब तक जिंदा रहूंगी। बच्ची कहाँ है? बेटा तुम्हारे पापा के पास है और बेटी कहाँ है? मेरी बेटी? बेटी को तुम्हारा शौहर ले गया है। नहीं हना नहीं, प्लीज। देखो तुमने फिर टेंस होना शुरू कर दिया। तुमने तो कहा था कि अगर खुदा ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे मेरे शौहर के हवाले कर देना। प्लीज सहर, मुझे झूठा ना करो। देखो मेरे दोस्तों में मेरे खुलूस का एतबार है। यहाँ आया था वो? तुम्हारा शौहर? हाँ यहाँ आया था। क्या पापा ने उसे बहुत जलील किया था? हाँ किया था, लेकिन फिर उस जुल्म का कुफारा भी अदा किया। तुम्हारी बेटी को बहुत कुछ दिया है, मोहसिन को बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ रुखसत किया है अपने घर से। खुदावंद की कसम जो कुछ कह रही हूँ उसकी सच्चाई अब तक कायम रहेगी। मेरा पूछा था उसने? तुम तो उसके लिए मर चुकी हो सहारा, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि पापा क्या सोच रहे हैं। जो लोग अपनी तकदीर दहशतगर्दों के हाथ में दे देते हैं वो क्या सोच सकते हैं? वैसे इस वक्त वो तुम्हारे बेटे को सीने से लगाए बाग में है।
सबाल खैर पापा। सबाल खैर साहर। राहील ने मेरे दिल में तेरी जगह कर ली। आप इसे वाकई मेरी तरह चाहेंगे पापा? तुमसे बहुत ज्यादा। तो फिर इसे इसके बाप के पास भिजवा दीजिए पापा। यहाँ ये दहशतगर्दों से महफूज नहीं होगा। इसे परवरदिगार ने तेरी और मेरी हिफाजत के लिए भेजा है। फिरौन के घर मूसा कैसी बातें करते हैं पापा। मुसलमान का बेटा है, मत भूलिए। बेटे अपनी माँ की बातें मत सुनना। मैं तुझे बहुत दूर, तेरी माँ से बहुत ही दूर इसराइल में ले जाके पालूंगा। बच्ची का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान पहुंचते ही मैं उसे अम्मी के हवाले कर दूंगा। सच्ची पूछे तो मेरे को बच्चे संभालने आते भी नहीं। शहरियार बाबा की तो नैपी भी मैंने कभी नहीं बदली। एक कुकिंग कभी नहीं हो सकी मेरे से। कुकिंग का क्या मसला है? एक बहुत अच्छा सा कुक और एक बैरा रख लेंगे। आपके पेरेंट्स की जायदाद तो होगी? हाँ, इतनी कोई खास नहीं है। फिर इतनी एक्सपेंसिव तालीम कैसा दिलाया आपको? नहीं, अब इतने भी क्या गुजरे नहीं है। मेरे वालिद डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं। मेरे कजन और ब्रदर इन लॉ जॉइंट सेक्रेटरीज हैं। मेरे भाई इंग्लिश फर्म में एग्जेक्टिव हैं। आप अभी इतने साल के बाद पाकिस्तान जा रहे हैं, ऑफिस खोलेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, वक्त लगेगा। पैसा एकदम तो आना नहीं शुरू हो जाएगा ना? क्या मतलब है आपको? मेरा मतलब है कि हम थोड़ा वेट करके भी शादी कर लेंगे। नो, मनी इज नॉट माई प्रॉब्लम। इस वक्त भी मेरे पास ब्रीफकेस पैसों से भरा पड़ा है। अब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आई एम मिलियनेयर। अम्मा, आप इतनी सिंपल दिख रहे थे ना मुझे। आपको पता है, मैं सोची भी थी कि दूसरी शादी करूंगी तो किसी मिलियनेयर से। एक दफा एक पामिज भी यही बोला था मेरे को। अजी नवाब हमीदुल्ला साहब, क्या बोल रही हूँ मैं? सुन रहे हैं आप? आपकी बातें नहीं सुनी तो ही अच्छा है। अरे बात करो मोहसिन से। आप नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा? खादिम का ख्याल है कि सारी बातें आपकी साहबजादी खुद ही कर डाले। आई, अच्छा बोले। जरताज क्या बात करेंगे? इतनी भोली मासूम शर्मिंदी मेरी बच्ची खुद ही क्या बात कर लेंगे? क्या है नवाब साहब, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? अब आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो, नावल पढ़ने दो। क्या अक्लमंद खातून लायक खातून नावल लिखी है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जैसी जरताज बीबी की और मोहसिन साहब की है। मैं सोच रहा हूँ कि ये हफ्ता कैसे कटेगा। सबर भी नहीं कर सकते। डायमंड सेट नहीं लाए ना तो तुम भी वापस, हाजी भी वापस। 12 बज रहे हैं, पापा जाग रहे होंगे। हमारी पूरी फैमिली में एक पापा जरा बैकवर्ड है। एक्चुअली ही इज दखनी एंड मदर इज ए फॉरेनर। मैं हमेशा लाइफ पार्टनर के लिए फॉरेनर ही चुन लेता हूँ। 2 दिन के बाद तो कराची पहुंच जाएंगे हम लोग ना। हेलो मोहसिन। हेलो डॉक्टर किरमानी। कब आए तुम? मैं अभी पहुंचा। लेकिन यार लंदन में तुमने कहा था कि तुम 10-12 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाओ। हाँ, बस वो एक प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? ये यहाँ कैसे? मेडिसिन लेनी थी बच्ची के लिए। बच्ची के लिए? शादी भी कर ली, बच्ची भी हो गई। ये बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं फिर किसी वक्त बैठ कर सुनाऊंगा। तो अली कैसा है? मुझे नहीं पता। क्यों? घर चलो ना। नहीं, मैं आज लाहौर जा रहा हूँ, वापसी पे कराची में सेटल होऊंगा। हाँ, तो फिर बैठ कर बात होगी। ठीक है? बेगम साहब, रोशन बीबी, हुस्ना बेटी, वो आए हैं। वो कौन आया? वो आए हैं, बस हमने देखा अभी। अरे वो मोहसिन में आ गए हैं, साथ में छोटी बीबी भी है, सिस्टर के कपड़े पहने हुए, और गोद में छोटी सी बिटिया भी है।
कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस घर के गए हुए लड़के चाहे मोहसिन हो या अली इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकते। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। और देखो मोहसिन भी आए हैं, मोहसिन भी हैं। अम्मा 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 अरे अरे कोई एहसन को और आबिद को तो बुलवा लो। अम्मा परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम बुलाए लेते हैं। शौकत भाभी जल्दी से बक्का को भेज दीजिए। बस रोशन भाभी अभी भिजवाती हैं। अम्मा बक्का, ओ बक्का। जी तो दीदी, तुम जल्दी से एहसन साहब के दफ्तर दौड़ जाओ और उनसे जाके कहो कि मोहसिन मियां आ गए हैं, वो फौरन आबिद भाई को लेके यहाँ पहुँच जाए मुस्लिम टाउन। दुल्हन बीबी, मेम का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। मोहसिन मियां तो मेरे को भी नहीं पहचाने। अरे बक्का नहीं पहचानते तो ना पहचाने, खुद ही नुकसान उठाएंगे, बस तुम जल्दी से दौड़ जाओ। ठीक है, बस ये गया और वो आया। हाँ। बक्का जल्दी कर, तांगा तैयार है। तैयार है? हाँ। चलो चलो। शपद्रन ये सब कुछ क्या हो रहा है? बुनियादी जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला क्या है। हाँ आगा जी, एहसन भाई ने मुझे 10,000 का बैंक ड्राफ्ट लंदन भेजा था, वो पैसे आप मुझसे ले लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैं तुमसे पैसे वापस लेना चाहता हूं। तुमने पैसे मिलने की कोई इत्तला नहीं दी थी, इसलिए सवाल कर रहा था। नहीं नहीं आगा जी, अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप ले लीजिएगा। मैं आगा जी के सामने कह चुका हूं कि मैं तुम्हारे शौहर का नाम लेना और सुनना पसंद नहीं करता, और मैं ये भी नहीं बता सकता कि वो जिंदा है या मर गया। मोहसिन अली के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं होगी रोशन आपा। जो इस घर का सबसे अहम मसला है, अगर उसके बारे में तुम्हारा रवैया इतना सख्त है तो फिर ये क्या पूछा जाए कि खुद तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कहाँ है तुम्हारी बीवी, और ये बच्ची यहाँ तक किस तरह चली आई है। मेरी बीवी मर गई है और ये उसी की बच्ची है। ये नर्स है जो कल नाइजीरिया वापस जाएगी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और मेरी नई बीवी इस बच्ची को संभालने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अगर आप लोग इस बच्ची को संभाल सकते हैं तो संभालिए, वरना मैं इसे किसी अदारे के हवाले कर देता हूँ। ये तुम्हारी ही बेटी है। आई विश आगा जी कि ये मेरी ना होती। ये मियां, सौतेलों का सौतेलापन तो देखा था, सबों की अकल पर पत्थर पड़ते आज ही देखा है। आपका क्या कंसर्न है? आप क्यों बीच में बोल रही हैं? कल से मियां